Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start a new topic that is alkene. Dear student, first of all I am going to introduce what is alkene. Alkene are the unsaturated hydrocarbons. Dear student, why this is called unsaturated hydrocarbon? Due to presence of carbon double bond carbon. Dear student, carbon double bond carbon present होता है in alkenes. That's why it is called unsaturated hydrocarbon. Next point is alkenes are reactive than alkanes due to presence of carbon double bond carbon functional group. डियर स्टूडेंट, अल्कीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से अल्कीन जो होते हैं वो एडिशन टाइप के रिएक्शन देते हैं. अल्कीन्स रिएक्टिव इन नेचर होती हैं, जबकि अल्कीन के अंदर ऑल बॉन्ड आर सिंगल होते हैं. दैट्स व्हाई अल्केन डू नॉट गिव द रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज अल्कीन्स mainly give addition type reaction. This is also due to presence of carbon double bond carbon. ये स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड अ साइट फॉर रिएक्शन. जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वो रिएक्शन देते हैं. अब अल्कीन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, दैट्स व्हाई अल्कीन गिव नो रिएक्शन. बट इन केस ऑफ द अल्कीन carbon double bond carbon functional group present, that's why alkenes give addition type reaction. Next one, dear student, the general formula for the alkene is CnH2n. Dear student, after introduction of the alkene, now I am going to explain how to write the molecular formula, structural formula, displayed formula and naming of the alkene. First of all, I am going to put n is equal to 2 in general formula. Then you will get the molecular formula C2H4. C2H4. So the structural formula for the C2H4 is carbon double bond carbon CH2 CH2. This is the structural formula. Dear student, मैंने आपको बताया था कि structural formula में only you have to show the carbon carbon bond, not show the carbon hydrogen bond. But in case of the displayed formula, we show all bonds openly. Air, carbon, double bond carbon, each carbon bonded with 2 hydrogen by single bond. This is the displayed formula for n is equal to 2. So n is equal to 2 containing molecular formula of the alkene name is ethene. Dear student, हमने जब नेमिंग दी थी मैंने बताया था कि n is equal to अगर 2 होगा, नंबर ऑफ द कार्बन अगर 2 होंगे तो हम प्रीफिक्स f यूज करेंगे. तो here the functional group double bond, so the suffix used for the double bond is e. So that's why we write name here ethene. Next one, dear student, if you put n is equal to 3, then you will get the molecular formula C3H6. कार्बन का नंबर जस्ट हमने डबल करना है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे. सो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस, you have to write the 3 carbon in a straight line and 1 carbon double bond carbon, right? तो each carbon की वैलेंसी को हम फुलफिल करेंगे by bonding with hydrogen. फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे. तो द डिस्प्लेड फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल, फर्स्ट में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. The name for this compound here 3 carbon present. तो 3 कार्बन के लिए डियर स्टूडेंट हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, हम प्रोप यूज करते हैं. Here carbon double bond carbon also present, that's why we write the name for this compound is propene. Next, dear student, if you put n is equal to 4, then you will get the molecular formula C4H8. So the structural formula for this compound, you have to write the 4 carbon in a straight line first, and you have to write only 1 carbon double bond carbon in any place. Carbon double bond carbon.
first carbon containing 2 hydrogen, second 1, third 2, and fourth 1, 3. So the displayed formula for this compounds, all bonds show openly. अब डियर स्टूडेंट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आप इस सेकंड और थर्ड के दरमियान में भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है ईच कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो फुलफिल होना जरूरी है। इस कार्बन के ऊपर भी हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, और फोर्थ वन कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हम कंबाइन करेंगे। Here 4 carbon present, so the prefix used for 4 carbon is used. So 1 carbon double bond carbon present, that's why we use suffix E. Butene is the IUPAC name for this compound. Similarly, dear student, if you put N is equal to 5, then you will get the molecular formula C5H10. The structural formula here, you have to write the 5 carbon in a straight line. अब ये स्टूडेंट मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सेकेंड कार्बन और थर्ड के दरमियान में लगा रहा हूँ। तो रेस्ट ऑफ कार्बन की वैलेंसी को हमें फुलफिल कर देना है बाय बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, थर्ड के साथ भी 1 हाइड्रोजन, फोर्थ के साथ 2 हाइड्रोजन और फिफ्थ के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर। सो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द डिस्प्लेड फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट द 5 कार्बन in a straight line. First of all, you have to write carbon double bond and carbon at carbon number 2. तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हम ओपनली शो करने। फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, सेकंड के ऊपर 1 हाइड्रोजन, थर्ड के ऊपर भी 1 हाइड्रोजन, फोर्थ के ऊपर हम 2 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे और फिफ्थ के ऊपर भी हम 3 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे। Here the position of the double bond, 2 carbon 1, 2, 3, 4 and 5. So the name for this is 2-pentene, या आप पेंट 2-ene भी लिख सकते हैं इसको। पेंट 2-ene is also the name for 2-pentene. Next one, dear student, if you write N is equal to 6 in general formula, then you will get C6H12. अब डियर स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, आपने स्ट्रेट चेन के अंदर आपने 6 कार्बन लिखने, और आपकी मर्जी है कि कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट एट कार्बन नंबर 3 CH2, CH2, थर्ड के ऊपर 1 हाइड्रोजन, फोर्थ के ऊपर भी 1 हाइड्रोजन, फिफ्थ के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और सिक्स के ऊपर भी हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसका डिस्प्लेड फार्मूला भी लिख के मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो नेम फॉर दिस कंपाउंड इज, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3, 1, 2 and 3. द नेम फॉर दिस कंपाउंड इज 3-हेक्सेन, या आप इसको नेम कैसे दे सकते हैं, हेक्स 3-ene भी इसका नेम आप दे सकते हैं। Similarly, dear student, if you put N is equal to 7 in the general formula of the alkene, then what would be the molecular formula for this compound? What would be the structural formula for this compound? And what would be the displayed formula and name for this compound? तो dear student, आप लोगों ने इसका displayed formula, structural formula और molecular formula और name आपने मुझे comment box के अंदर text करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी क्वेरी को फुलफिल करूंगा। डियर स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट एल्कीन टू सेकंड एल्कीन, मीन इथीन इनटू प्रोपीन, आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस आ रहा है CH2 ग्रुप का आ रहा है। सेम वे थर्ड टू फोर्थ में आप जब मूव करते हैं तो इसमें भी डिफरेंस आ रहा है CH2 ग्रुप का। इफ यू मूव फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, here you can also see the different CH2 group. Next one also सेम पैटर्न से आप लास्ट 2 के दरमियान में भी आप देखेंगे कि एडजेसेंट मेंबर जो हैं वो डिफर कर रहे हैं CH2 ग्रुप से, और ऑल मेंबर्स के अंदर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, सब के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप। ऑल फॉलो द जनरल फार्मूला फॉर दिस CnH2n,
अब ऑल मेंबर जो हैं डियर स्टूडेंट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन टॉप टू बॉटम आप जब मूव कर रहे हैं देख सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगी, डिफरेंट करेंगे। तो दीज आर द होमोलोगस। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द होमोलोगस सीरीज फॉर द अल्कीन फैमिली। तो होमोलोगस सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, एडजेसेंट मेंबर डिफर करेंगे CH2 ग्रुप से, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिफरेंट होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ द alkenes. Got it everyone dear student? Next one dear student, reaction of the alkenes. Alkene give two type of the reaction, combustion reaction and addition type of reaction. First of all, I am going to explain combustion reaction of the alkenes. Dear student, there are two type of the combustion, complete combustion and incomplete combustion. जैसा कि हमने combustion of the alkene को explain किया था, similarly here we are also going to explain the complete combustion of the alkene. जब हम alkene की complete combustion करते हैं तो रिजल्टेंट में इसके टू प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Dear student, first of all I am going to explain combustion reaction of the ethene. C2H4 react with oxygen. So dear student, in complete combustion excess supply of the oxygen occur. ऑक्सीजन जो हम सप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, उसकी एक्सेस सप्लाई होती है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम ऑक्सीजन जब प्रोवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट में ऑल ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन एल्कीन कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ द हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू द वाटर। सो डियर स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रॉब्लम जो होता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि अल्कीन्स के अंदर मैंने सर्टन रूल्स जो हैं मैंने आप लोगों को बताए थे कि हाउ टू बैलेंस द कार्बन, हाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड हाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन। सो सेम पैटर्न में डियर स्टूडेंट, हेयर द मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को हम बैलेंस करते हैं विद द नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन अल्कीन। हेयर कार्बन नंबर 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोल हम 2 बना देंगे, तो कार्बन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बोथ साइड पे बैलेंस हो गया नंबर। अब रह गया हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अल्कीन डियर स्टूडेंट उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। हेयर 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आंसर आता है, तो 2 मोल्स ऑफ द वाटर हम बना देंगे। अब रह गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डियर स्टूडेंट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4। हेयर x जो होगा डियर स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ द कार्बन और y इक्वल टू नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। अगर हम इसमें पुट करें फॉर्मूले के अंदर तो नंबर ऑफ द x के हैं बेटा 2 है, 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें से आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर जो डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा वो 4 इंटू 4, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 आंसर इसका आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 3। तो 3 मोल ऑफ द ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ द ईथीन, इट विल गिव द 2 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ द वाटर। होप सो के सबको बैलेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। गॉट इट? नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, इनकम्प्लीट कंबस्शन। डियर स्टूडेंट, इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अल्कीन को प्रोवाइड करते हैं, तो रिजल्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस हो सकता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। Here dear student, oxygen is limited supply. It will give carbon monoxide or carbon only. Here there is no required equation. तो डियर स्टूडेंट, इनकम्प्लीट कंबस्शन का जो रिएक्शन है हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, इट विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, कार्बन पाउडर। Hopefully, dear student, everyone got well about the alkene, how to write the structural formula, discrete formula, name of the alkene, and the combustion reaction of the alkene. So, dear student, next lecture के अंदर इंशाल्लाह we will discuss the addition reaction of the alkene. Hopefully, dear student, everyone got well about today's lecture.
So share, subscribe and like my channel. Thank you so much for watching.